October November 2020 is a new paper. नेक्स्ट पेपर जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, वेरिएंस 22 है हमारे पास. ओके, एटम्स कंटेन the subatomic particles, electrons, protons, and neutrons. Protons and electrons were discovered by observation of their behaviors in electric field. The diagram shows the behavior of separate beams of electrons and protons in an electric field. Okay, अगर electron लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव प्लेट है. और ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया. कंप्लीट द डायग्राम विद द रिलेटिव चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स. ऑन द डायग्राम ड्रॉ अ लाइन टू शो हाउ द सेपरेट बीम्स ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द सेम सोर्स बिहेव्स. आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन डू नॉट डिफ्लेक्ट, दे विल मूव स्ट्रेट अवे लाइक दिस. सही है, और इसको आप लेबल कर दीजिए न्यूट्रॉन. Electrons in atoms up to krypton are distributed in s, p, and d orbital. State the number of occupied orbitals in an atoms of krypton. तो कैसे पता चलेगा कि भाई कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड हैं? तो आप एक काम करें, क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें. ये हो जाएगा आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, and then 4p6. तो ये हो जाएगा 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 6 36, राइट. अब देखें s ऑर्बिटल के कितने 1 2 3 4 s ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, यहाँ 4 लिखो. p ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं 1 2 3 p ऑर्बिटल आ रहे हैं. p सिर्फ एक ही है आपके पास, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे. बल्कि इस तरह से नहीं होगा, एक मिनट, वो आपसे पूछ रहे हैं ऑर्बिटल्स, राइट. दैट मींस कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो जाए. सबशेल्स तो 3 है बट ऑर्बिटल्स 9 है. इसी तरह से सबशेल 1 है लेकिन ऑर्बिटल्स 5 है, यहाँ 5 आएगा. सही है. Complete the diagram to show the number and relative energies of the electrons in an isolated atom of silicon. Silicon का atomic number 14 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and then 3p2. The diagram shows a type of orbital. State the total number of electrons that exist in all orbitals of this type in an atom of fluorine. फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 1s2, 2s2 and 2p5. तो p ऑर्बिटल है ये, राइट. तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 हैं, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए. The first ionization energy of element in the first two of d block are very similar for all those elements. It is a 4s orbital that is lost during the first ionization. Explain why the first ionization energies of these elements are very similar. अच्छा, इसका आंसर काफी डिफरेंट स्टाइल से दिया जा सकता है, और आप ये कह सकते हैं कि across the period nuclear charge increases across period nuclear charge increases while shielding remains same. So while shielding remains same, क्यों remain same है?
due to the presence of 3D inner electrons. These inner electrons will weaken the nuclear attraction onto the electrons of 4s orbital. Onto the electrons of 4s orbital. Hydron is a general term used to represent these ions. State in terms of subatomic particles in the nucleus what is the same about each of these and what is different. तो याद रखिएगा सबatomic particles किस सेंस में कह रहे हैं. सेम क्या होंगे? Protons and electrons. उनके atomic numbers same है. Different क्या होंगे? Number of neutrons. State and trend in acid-base behavior of the oxide from period 3 element from sodium to sulfur. ये metal हैं तो basic oxides. तो basic से amphoteric, amphoteric से acidic. From more basic to more acidic. ठीक है, ये मेटल है तो बेसिक बनाएंगे, ये नॉन मेटल है तो एसिडिक बनाएंगे. State and explain the trend from sodium to sulfur in the maximum oxidation number of the period 3 elements in their oxides. बेटा ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 और ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है तो 6. ठीक है, तो आप कह सकते हैं across the period oxidation number of the elements in their oxides increases. तो हम कह सकते हैं, कहाँ चले गए हम, तो कहाँ चले गए बेटा? Is a paper. क्या हुआ? अच्छा जी देखिए, across the period number of valence electrons increases so oxidation number of period 3 elements in their oxides increases. Name the product of each reaction. Sodium oxide with water, the product का नाम होगा sodium hydroxide. ठीक है बेटे. Phosphorus 5 oxide with water यानी P4O10 with water तो बनेगा phosphoric acid. Explain why phosphorus 5 oxide has a low melting point of approximately 300 degrees Celsius, but magnesium oxide has a high melting point of approximately 2850 degrees Celsius. So it's an easy answer. हम कहेंगे कि phosphorus 5 oxide
में कोवलेंट बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें वीक वैन वाल फोर्सेस होंगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, जाइंट लैटिस होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो हम बता देते हैं यहाँ पर P4O10, that is phosphorus 5 oxide, exhibit covalent bonding. And has a molecular structure. Due to weak van der Waals forces, it has low melting point. On the other hand, magnesium oxide exhibit ionic bonding. Has a giant crystal lattice structure. So due to strong electrostatic attraction, it has high melting point. Write an equation for the reaction of aluminum oxide with excess aqueous hydrochloric acid. ये हो जाएगा Al2O3 plus 6HCl arrow 2AlCl3 plus 3H2O. Write an equation for the reaction of aluminum oxide with excess sodium hydroxide. तो ये हो जाएगा Al2O3 plus 2NaOH plus 3H2O arrow 2NaAlOH taken 4. Describe the lattice of silicon 4 oxide. Your answer should reference the arrangement of the silicon and oxygen atom and the bonds between them. Lattice structure of silicon dioxide. तो आप बताएंगे silicon 4 oxide has a giant lattice structure. It exhibits covalent bonding between silicon and oxygen. And arrangement of silicon and oxygen atom. So आप बताएंगे these silicon oxygen bonds are arranged in tetrahedral fashion. Tetrahedral arrangement भी कह सकते हैं, fashion भी कह सकते हैं. Sodium oxide and silicon 4 oxide reacts to form sodium silicate.
Sodium oxide is obtained from the thermal decomposition of sodium carbonate. Write the equation for the following reaction. Sodium oxide with silicon dioxide. तो बेटा ये हो जाएगा Na2O plus SiO2 NO Na2 SiO3. The thermal decomposition of sodium carbonate forming sodium oxide and carbon dioxide. Sodium carbonate, sodium oxide and carbon dioxide. Guys, आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोडियम कार्बोनेट जो है ना वो डिकम्पोज नहीं होता, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो यहाँ पर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत हाई टेम्परेचर लिया होगा उन्होंने, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर या बंसन फ्लेम के ऊपर डिकम्पोजिशन नहीं हुई, requires a lot of energy and obviously Bunsen flame पे नहीं की होगी। Write an equation for the formation of PCl5 from the reaction of phosphorus and chlorine। तो phosphorus को हम P4 की फॉर्म में लिखते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, 4 PCl5 बना लेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। State the type of structure and bonding shown by PCl5। बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट और स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूलर। ठीक है। A small amount of PCl5 is added to excess water. The PCl5 reacts vigorously to form colorless solution. State one other observation you would make when PCl5 reacts with excess this। तो आप बताएंगे मिस्टी फ्यूम्स मिलते हैं हमें HCl के। Write the equation for the reaction of PCl5। तो ये भी आपको करवाया PCl5 वाटर, ये हो जाएगा H3PO4 plus 5HCl। ठीक है। Estimate the pH of the resulting solution। तो बेटा मैंने आपको कहा था आप 3 to 5 लिखो, इसकी रेंज जो मैंने रेंज लिखवाई थी नोट्स में वही लिख दीजिए। PCl5 is used to convert alcohols to chloroalkanes such as tea। A possible synthesis of tea is shown। बेटा ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये एज इट इज रह गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, फिर PCl3 से रिएक्शन करवा के क्लोरीन ऐड होगा, यहाँ पर भी क्लोरीन ऐड हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन ऐड हो गया। आइडेंटिफाई अ रिएजेंट दैट कुड बी यूज्ड इन रिएक्शन 1। तो ऑब्वियसली बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल आपने बनाया। T exhibits optical isomerism। Explain what is mean by the term optical isomers। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स और मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं encircle any atom that gives rise to optical isomerism। तो बेटा ये हो जाएगा, ये कार्बन हो गया। P is a minor product in the reaction of compound S with excess HCl। याद रखिएगा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये HCl है। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा तो एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो आपकी ये मेजर प्रोडक्ट दे देगा। तो हम देखें हाइड्रोजन ऐड किया, तो मैंने यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ये आ गए, और इस जगह के ऊपर क्लोरीन ऐड करेंगे। ये मार्कोनिकोव रूल अप्लाई किया मैंने, इसके हिसाब से लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अप्लाई मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, क्या शॉर्ट वर्ड्स में क्या है? रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। यानी जिनके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उनके पास हाइड्रोजन चला गया,
और जिनके पास हाइड्रोजन कम है वहां पर क्लोरीन आकर ऐड हो रहा है। सही है। Predict the shape of NCl3 molecule and the bond angle. NCl3, just like ammonia, trigonal pyramidal, angle 107 degree. NCl3 reacts with water to form HCl, a weak bronze chloric acid. Explain fully what is meant by the term weak bronze chloric acid. Weak acids partially ionizes in aqueous medium of bronze chloric acids. Proton donors are bronze chloric acids. ठीक है। NCl3 decomposes according to the equation shown. A sealed container of volume 250 cm3 contain an unreactive gas at a pressure of this, okay, 0.24 gram of NCl3 was injected into the sealed container. The sealed container was heated to make NCl3 decomposes and then cooled to 20 degrees Celsius. Calculate the final total pressure inside the sealed container at this. Okay, volume given है, pressure given. तो बेटा सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ से मोल्स ऑफ NCl3 कैलकुलेट कर लेते हैं। .241 को डिवाइड कर दीजिए आप NCl3 के MR से, विच इज 120.5, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 2 into 10 to the power minus 3। ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 3 मोल्स। और मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि 2 मोल्स ऑफ गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है NCl3। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 mole of NCl3 produces 2 moles of gas। ये देखो, ये 2 मोल्स हैं गैस के और ये टोटल 4 मोल्स हैं। तो अगर भाई 1 मोल ले रहे हैं हम, तो यहाँ कितने होंगे? 2 मोल्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सही, ये याद रखना। ठीक है बेटे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें 250 cm³ दिया हुआ है। वॉल्यूम इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 250 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। ठीक है। मुझे दिया हुआ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वो 220 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 में ऐड कर दूं
तो मेरे पास केल्विन हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक, फॉर्मूला है आपके पास PV इक्वल्स टू nRT, राइट। तो मुझे यहाँ से प्रेशर निकालना है। n की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻³ r की वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन है 8.31। टेम्परेचर आपने कितना निकाला है 293, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है आपके पास 250 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से आपके पास प्रेशर कितना आ जाएगा, मेरे पास प्रेशर आ जाएगा 3.89 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। वो मुझसे कह रहे हैं टोटल प्रेशर निकालो। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए PT करूंगा, प्रेशर प्लस एक है इनिशियल प्रेशर और एक है फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कौन सा था, ये रहा 1 टाइम्स 10⁵। तो इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना था 1 टाइम्स 10⁵, और फाइनल प्रेशर मैंने अभी कैलकुलेट किया 3.89 इंटू 10⁴। तो टोटल प्रेशर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1.39 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरह से मैंने कैलकुलेशन की है। Question number 4, A part 1, state the type of reaction that occurs in step 1. अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। Suggest reagents and conditions required for reaction 1. तो जाहिर सी बात है आप पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 यूज करेंगे। इन एसिडिक मीडियम, और कंडीशन क्या होगी आपके पास, हीट अंडर रिफ्लक्स, draw the structure of the organic product H from reaction 2. अब आप देखिए, जब आप सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो H की जगह Na आ जाएगा, बाकी पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं और उठाकर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप नोट कीजिए, नोट करने की बात यह है कि यहाँ से H चला जाएगा और इस H की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, Na, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे हम, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब सिल्वर मिरर फॉर्म होगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सिल्वर मिरर। गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 जरा नोट कीजिएगा, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है, तो आप स्टेरिफिकेशन बोल सकते हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके इस एस्टर को बना रहे हैं, और ये साइक्लिक एस्टर बनाया है आपने, तो हम इसको कहेंगे स्टेरिफिकेशन। G and J both are structural isomers of each other. Name the type of structural isomerism shown by this. बेटा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ही रहा, सही है, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये पोजीशनल आइसोमर है। ठीक है, state one chemical test that can distinguish G from J. Give the result of the test with each compound. बेटा एल्डिहाइड तो यूज सेम है, तो जाहिर सी बात है मैं यूज नहीं कर सकता, राइट। ये सोडियम मेटल भी यूज नहीं कर सकता, दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज नहीं कर सकता, दोनों में पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी एल्कलाइन एक्वस आयोडीन। सर आप क्यों यूज कर रहे हैं ये, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ
क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है CH3 CH OH, जब ये ग्रुप एक साथ लिखा हुआ हो तो आइडोफॉर्म का टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, इफ यू रिमेंबर। सो G के साथ नो चेंज और H के साथ येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे रिएक्शन करने के बाद। In the reaction scheme below, G and J are converted into organic compound K. State the role of NaBH4 in the reaction with G and J. बेटा G में आपके पास एल्डिहाइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन। J में भी एल्डिहाइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के। आप जानते हैं एक अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो एल्कीन बनेगी। सेम हियर, ये एक अल्कोहल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ डिहाइड्रेट करें अंडर हीट तो एल्कीन बनेगी। तो के इज एल्कीन, और एल्कीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा अगर आप गौर से देखें तो। OH यहां से भी जाएगा, बल्कि मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे जो हो रहा है। ये CH2OH है, 1 2 3 4 OH। देखो याद करो, मैंने कहा था OH हटाओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर उठाकर लिख दीजिए अपने आंसर में। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसके बाद है पार्ट C, P and Q have the same molecular formula as G। फिर वो कह रहे हैं आपसे कंप्लीट टेबल विद एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। बेटा एक्वस ब्रोमीन, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, नो चेंज। ओके, नो चेंज। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, नो चेंज। येलोइश ऑरेंज PPT आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये कीटोन है और यहाँ कीटोन नहीं है। एक्वस सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एफिवेसेंस प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर नो रिएक्शन या नो चेंज। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड L is shown, R represents a hydrocarbon chain। ठीक है, ये R chain है। A student was asked to deduce the full structure of L। The student analyzed L using infrared spectroscopy। The following spectrum was obtained। वो कह रहे हैं identify the bonds responsible for the absorption, mark X and Z। ये 16, ये 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, ये 16, ये 17, ये 1750, तो 1720 ये 1730 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप है। और Z जो है अकॉर्डिंग टू द नोट्स ये 1100 सेंटीमीटर इनवर्स से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होता है, और ये C सिंगल बॉन्ड O होता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे absorption Y shows L has a CC bond in R group। The student decided to treat L with hot concentrated acidified potassium मैग्नेट 7। The products of the reactions are shown below। ठीक है, नेम M। बेटा कितने कार्बन एटम है? 6, तो हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, हेक्सानोइक एसिड। अच्छा, उसके बाद यूज द इंफॉर्मेशन इन D टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ L। अब देखें
आईआर स्पेक्ट्रम को यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करना जरा मुश्किल काम है, बिकॉज आपको ये तो पता ही नहीं है कि इस आर के अंदर कितने डबल बॉन्ड है और इस आर में कार्बन कितने, ये तो मालूम ही नहीं है आपको, इजंट इट? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। सो मैं क्या करूं, मैं जो प्रोडक्ट है ना इससे डिटरमिन करूंगा चीजों को। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि मुझे वाई में आर में कितने डबल बॉन्ड है कितने कार्बन एटम है पता ही नहीं है, तो क्योंकि मुझे ये मालूम ही नहीं है कि इसमें कितने कार्बन एटम है और कितने डबल बॉन्ड है, विच इज वाई मैं काम ये करूंगा कि इस कंपाउंड के थ्रू जो प्रोडक्ट्स मिली है मैं इन प्रोडक्ट्स को देखकर एल का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लूंगा। कैसे? हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 उसी वक्त रिएक्शन करता है जब कंपाउंड के अंदर एल्कीन फंक्शनल ग्रुप हो, यानी इस आर के अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। ठीक है, एक बात तो तय हो गई कि इस आर के अंदर एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है। अब एल्कीन डबल बॉन्ड के साथ CH भी होता है और डबल बॉन्ड के साथ C भी होता है। जब CH होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जब C होता है तो कीटोन आता है। प्रोडक्ट देख के डिसाइड करेंगे कि CH होगा या C होगा। आप नोट करें, ये COOH है, इसका मतलब इस R के अंदर डबल बॉन्डेड CH होगा। ये भी COOH है, इसका मतलब इस R के अंदर डबल बॉन्डेड CH होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे COOH की जगह डबल बॉन्डेड CH ले लूंगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखूंगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं काम इस तरह से करूंगा, अलर्ट रहना। ये एज इट इज, 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 ये हो गया CH। इसको क्या ले लेंगे हम, CH। सही, और इसको भी क्या लूंगा मैं, CH। और अब क्या आएगा, CH2 taken 4 CH3। अब आपने रिएक्टेंट ये एल का स्ट्रक्चर है। अब इस सेल में कार्बन एटम काउंट करें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स काउंट करो, 4 times 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, ये 20 और ऑक्सीजन 2 है आपके पास। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है जनाब। So we are done with this paper as well.